So, Assalamu alaikum and good morning to one and all. As you all know, the exam of Diploma in Pharmacy should be conducted through online mode, that is MCQ based examination will be going on. I am here come with the subject of pharmacology and the toxicology, the possible questions that comes in your theory examination. So without wasting time, let's begin with our session. The first question, the pharmacodynamics deals with the study of, your options are mechanism of action, interaction with receptors, toxic effects of drugs, metabolism of drugs. So what does it pharmacodynamic means? Okay. So the pharmacodynamic, it is the branch of pharmacology. Pharmacology क्या है? It is nothing but the pharmacodynamic and the pharmacokinetic. What the body does with the drug and what the drug does with the body. ठीक है. So the pharmacodynamics में क्या होता है कि what the drugs, ठीक है. यहाँ डायनामिक यहाँ है तो डी से क्या है डायनामिक. ओके. सो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है. ठीक है. सो योर करेक्ट आंसर इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द फार्माकोकाइनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ, ऑप्शंस आर ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, interaction with the receptors, toxic effects of drug and the metabolism of drugs. Okay, so option D is related to the metabolism. Okay, it is one of the part of ADME. Okay, so that is removed the toxic effect of drug. Okay, okay, first we will see the meaning of word pharmaco and kinetic. Kinetic means moving. Okay, the movement of drugs in your body. Okay, so your correct answer for this question is ADME. Okay, next question, question number 3, what is absorption? Absorption क्या है? The elimination as waste product. The drugs to be ingested or administered should be eliminated as waste product. Option B, entry from the site of administration to the bloodstream. Okay. C, passage of drug dose across the cell membrane, or option D, both C and D. Okay. We will first focus on the first option, elimination as a waste product. Okay, जो भी ड्रग हम ले रहे हैं तो वो इलिमिनेट हो जा रही है हमारी बॉडी से एज ए वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जा रही है. ओके, तो दैट इज द एक्सक्रीशन प्रोसेस. इन दिस क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज एलिमिनेटेड. ठीक है, ऑप्शन बी एंड सी, लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन बी एंड सी. Entry from the site of administration to the blood stream. Okay, okay, let's take an example of parenteral drugs. Okay, हम parenteral drugs को जब administer करते हैं from the site of administration, ठीक है, और you can take oral example as well. ठीक है, कि जो भी ड्रग्स हम ले रहे हैं वो साइट से हमारे ब्लड स्ट्रीम तक कैसे पहुँचती है. दैट इज़ द एंट्री फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम. और सी, पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. ओके, जो भी ड्रग हम ले रहे हैं तो अल्टीमेटली वो क्या होंगे, वो इट विल क्रॉसेस द सेल्स. ओके, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से उसकी क्रॉसें होंगी. ओके, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी, बोथ सी एंड डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? योर ऑप्शंस आर रिमूवल ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी, B, drug entry from the site of administration to the blood, C, the change that the drug undergo in body, and the D, circulation of drug in whole body from the blood stream into the blood plasma. Okay, so what is distribution? Okay, after the absorption the next phenomena comes is distribution, ADME. D stands for distribution. ठीक है, so हमारे जब बॉडी में ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है तो इट विल रीचेज टू द टारगेट टिश्यूज़ और टारगेट ऑर्गन्स. ओके, ड्रग का फंक्शन होता है, और हमारे जो ड्रग है जो हमने लिया है बाय मीन्स ऑफ ओरल, पेरेंटल और रेक्टल, व्हाट एवर इट मे बी. ठीक है, तो प्रॉपर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, और जो टारगेटेड ऑर्गन्स हैं वहाँ पे उसका
वो रीच करना चाहिए, ठीक है। सो रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी, ओके, इट इज़ एलिमिनेटेड, ठीक है। द एंट्री ऑफ ड्रग एंट्री फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द blood, okay, that is your absorption, that changes that undergo in the body, okay। ड्रग्स के अंदर जो चेंजेस आती है, ओके, एक्टिव ड्रग इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होती है, तो फिर इनएक्टिव ड्रग एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होती है, ठीक है। दैट इज़ द चेंजेस, ठीक है। और डी ऑप्शन क्या है, द सर्कुलेशन ऑफ ड्रग इन होल बॉडी फ्रॉम ब्लड टू द ब्लड प्लाज्मा, ओके। अब ड्रग जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगी तो इट इज़ बाय मीन्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, हेंस द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी। The distribution of drug is the circulation of drug in whole body from blood stream. Next question, what is metabolism? Okay, metabolism is nothing but the catabolism and the anabolism, breaking down process, or it is a breaking down or composition, okay, breaking of food or compounding of foods, ठीक है। So options are same, okay, in the distribution, okay। So the correct answer for this is the change that the drug undergo in the body, okay। Next question, what is excretion? Finally, and you know the correct answer for this is option A, the removal of the drug from the body, okay। It is ultimately the last phenomena of pharmacokinetic or ADME. E stands for excretion, okay। Next question, question number 7, what factors affect absorption? कौन कौन से factors affect करते हैं absorption को, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ द ड्रग, ओके। आपके ड्रग्स कौन से स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। द फिजिकल स्टेट ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट द पार्टिकल साइज, ओके, आपके ड्रग की पार्टिकल साइज कोर्स है, ओके, वॉट एवर द साइज, पार्टिकल साइज स्मॉल है, बिग है, वॉट एवर इट मे बी, ओके, द साइज ऑफ द पार्टिकल, ओके। नेक्स्ट है द कॉन्सेंट्रेशन एंड द पीएच ऑफ द ड्रग, ओके। आपका ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन क्या है और आपके ड्रग का पीएच क्या है, वेदर इट इज़ एसिडिक और वेदर इट इज़ बेसिक, ओके, और कौन से कॉन्सेंट्रेशन में वो अवेलेबल है, और एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो ऑल द फैक्टर शुड अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन, hence the correct answer for this is 7, okay। Next question, question number 8, the changes that the drug undergoes in the body are known as, ठीक है, the transformation, biotransformation, elimination और absorption, okay। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, the changes that the drug undergoes in the body, okay। तो हमने जो है फार्माकोडायनामिक और फार्माकोकाइनेटिक स्टडी की थी, ADME, ठीक है। तो उसमें M स्टैंड्स फॉर मेटाबॉलिज्म, ओके, एंड दैट मेटाबॉलिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे तो ड्रग का चेंज हो रहा है, द चेंजेस दैट द ड्रग अंडरगोज इन द बॉडी, ठीक है। ड्रग का चेंज हो रहा है, यहाँ पे ड्रग ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ड्रग के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, इन द लिविंग बॉडी, इन द ह्यूमन बींग्स, हेंस द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज द बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द इम्पॉर्टेंट चैनल ऑफ ड्रग एक्सक्रीशंस आर, ओके, फ्रॉम विच चैनल, ओके, ड्रग्स आर टू बी एक्सक्रीटेड, ओके। अब ऐसा है नहीं कि ऑल द ड्रग्स शुड बी एलिमिनेटेड बाय your stool, ठीक है। some of the drug is excreted by your kidney, some of the drugs is eliminated through your lungs, ठीक है, जो भी हम इनहेलेंट फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, जो भी एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, ड्रग्स में आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू लंग्स, ठीक है। इंटेस्टाइन से भी कुछ ड्रग्स जो है एक्सक्रीट हो सकती है, स्किन में क्या होते हैं, नंबर्स ऑफ मिलियंस ऑफ पोर्स होते हैं, ठीक है, फ्रॉम विच the drugs may eliminate, okay, from the saliva and from the milk, ठीक है, if the breastfeeding mother is there, ठीक है, तो अगर वो मदर जो है इफ़ ऑन द सर्टन मेडिकेशन, ओके, तो वो ड्रग्स भी जो है वो मिल्क के थ्रू एक्सक्रीट हो सकती है फ्रॉम द बॉडी एंड फ्रॉम द सलाइवा, हेंस द करेक्ट
answer for this is all of the above. Okay, next question, question number 10. Acidic drugs like salicylate and barbiturates, okay, are rapidly absorbed from the stomach. This sentence is true or false. Okay, acidic drugs, okay, like salicylic acid or barbituric acids, okay, they are absorbed from stomach. Okay, stomach क्या है हमारा, it is the स्टमक में क्या होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, उसका पीएच जो है एसिडिक होता है. हेंस द ड्रग्स लाइक सैलिसिलेट एंड बार्बिट्यूरेट्स आर रैपिडली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्टमक. ओके, अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो हमारा इंटेस्टाइन है वही हमारा साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है. ओके, स्टमक में भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है, पर्टिकुलरली जो एसिडिक ड्रग्स है उनके. ठीक है, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ट्रू. ओके, question number 11. Passive diffusion, active transport and पिंकोसाइटोसिस are the processes involved. कौन ये जितने भी प्रोसेसेस है, ओके, वो किस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन. ठीक है, सो दीज ऑल आर द processes that are involved in the process of absorption. Okay, these are the types of absorption. पैसिव डिफ्यूजन से भी एब्जॉर्प्शन होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी होता है, पिंकोसाइटोसिस से भी एब्जॉर्प्शंस होते हैं. Okay, the correct answer for this is absorption. Next question, question number 12. The distribution of drugs into the central nervous system brain usually depends on. यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स. ओके, ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पर्टिकुलरली ब्रेन. ओके, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ओके, इफ द ड्रग इज एक्वियस इन नेचर और एक्वियसली डिफ्यूज्ड, ओके, द ड्रग to be lipid diffusion, okay, active transport or receptor mediated endocytosis. Okay, so the correct answer for this is lipid diffusion. ठीक है, अगर आपका ड्रग्स लिपिड सोल्यूबल है, ठीक है, लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर आपके अंदर ज़्यादा है, so the correct answer for this is lipid diffusion. Okay. Next, question number 13. Which of the following have highest bioavailability? Okay, these are the routes of administration of the drugs. Okay, you know very well, intramuscular, it is the route of administration for the parenterals, intradermal, intravenous or subcutaneous. Okay, these are all comes under parenteral. Okay, so the highest bioavailability. Okay, highest bio. Okay, we will first see the definition of bioavailability. Okay, bioavailability क्या है? The rate and the extent of the drug, okay, that reaches the systemic circulation. Okay, the amount of drug, okay, that reaches the systemic circulation is called as bioavailability. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? Which of the following have the highest bioavailability? ठीक है, अब इंट्रावेनस इट इज़ द ओनली रूट इन विच जो भी हम ड्रग्स देते हैं वो डायरेक्टली आपके ब्लड सर्कुलेशन में ऐड हो जाता है. ठीक है, ऑल द ड्रग्स इज डायरेक्टली गोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम ओनली इन द केस ऑफ इंट्रावेनस. ओके, नॉट इन द केस ऑफ सबक्यूटेनियस, नॉट इन द केस ऑफ इंट्राडर्मल, नॉट इन द केस ऑफ इंट्रामस्क्यूलर. ठीक है, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इंट्रावेनस. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. यहाँ पे आपको क्वेश्चन है बायो अवेलेबिलिटी मीन्स. ठीक है, ऑप्शंस आर रेट एंड द एक्सटेंट ऑफ ड्रग रीचेस टू सिस्टमिक सर्कुलेशन. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए. ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. द स्टडी ऑफ अनवांटेड और डिलीटेरियस इफेक्ट ऑफ केमिकल्स ऑन द बॉडी इज कॉल्ड. ठीक है, यहाँ पे क्या है पूछा गया है? द स्टडी ऑफ अनवांटेड. ओके, हम मेडिसिन क्यों लेते हैं? ताकि हमको जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट है, जो हम इफ़ेक्ट चाहते हैं, ओके, द इफ़ेक्ट वी वांट, ठीक है, हमको वो इफ़ेक्ट मिलेगा. किसी को फीवर है, ओके, तो हम मेडिसिन लेते हैं. क्यों लेते हैं? कि वो फीवर को कम किया जा सके. ओके, द फीवर विल रीच टू द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, हम वांटेड इफ़ेक्ट्स हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? द स्टडी ऑफ अनवांटेड और डिलीटेरियस इफेक्ट ऑफ केमिकल्स ऑन द बॉडी इज कॉल्ड एज. ऑप्शंस आर फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक एंड द डायनामिक. ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक एंड द डायनामिक, इट इज द डिफरेंट वन. फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, ओके,
therapy, what the therapy is involved, okay, for treating the disease and the disorder. ठीक है, तो ऑप्शन ए भी यहाँ पे डिलीट हो जाता है, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज टॉक्सिकोलॉजी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16, मेजर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज. द मेजर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग across biological membrane. Options are passive diffusion, facilitated diffusion, active transport or endocytosis. The correct answer for this is passive diffusion. Okay, most of the drugs, ठीक है, जो कि आप orally आप लेते हो तो that drug goes through the passive diffusion. ठीक है. Next question, acidic drugs is more ionized at अल्कलाइन pH, एसिडिक pH, न्यूट्रल pH और नन ऑफ दी अबव. ठीक, यहाँ पे एक कंसेप्ट यहाँ पे आपका बहुत ही क्लियर होना ज़रूरी है कि जो भी एसिडिक ड्रग है, ठीक है, उसको आयोनाइज होने के लिए बेसिक और अल्कलाइन pH का होना बहुत ही ज़रूरी है. ओके, ताकि वो अपना इफेक्ट शो कर सके. ठीक है. उसी तरह जो अल्कलाइन ड्रग्स है उसके लिए जो है एसिडिक आयोनाइजेशन होना बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है. यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एसिडिक ड्रग्स जो कि हमारा ड्रग क्या है, एसिडिक है, इज़ मोर आयोनाइज्ड एट. ओके, कौन सी है pH पे वो मोर आयोनाइज्ड हो जाएंगी. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज अल्कलाइन pH. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज इम्प्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स व्हाट. ठीक है. Transport of drug through a membrane by means of diffusion. B. Transport without energy consumption. C. Engulf of drug by a cell membrane with a new vesicle formation. And the option D. Transport against the concentration gradient. So the active transport is the mechanism by which the transportation is done across the or done against the concentration gradient. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द फेट ऑफ ड्रग. ओके, यहाँ पे फेट पूछा गया है कि ड्रग का फेट क्या है. ओके, तो जब भी हम ड्रग्स लेते हैं तो अल्टीमेटली ड्रग्स है आफ्टर एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, हम जो भी ड्रग्स लेते हैं बाय मीन्स ऑफ ओरल रूट, उसका इन द माउथ चर्निंग होती है, या तो फिर जो भी ड्रग्स हम लेते हैं इट डायरेक्टली गोज टू द स्टमक. ठीक है, थ्रू इसोफेगस स्टमक में जाती है, वहाँ पे वो स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होती है, देन इट विल रीचेस टू द इंटेस्टाइन. ठीक है, वहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है, देन इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द ब्लड. ओके, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन. एंड फाइनली जो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में ड्रग पहुँचती है, वहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म होता है. ओके, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, द फेट ऑफ द ड्रग इज़ अल्टीमेटली द बायो ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज द मोस्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग टेक्स प्लेस. ठीक है, यू नो द आंसर, दैट इज लीवर. यू नो वेरी वेल. यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट जो है ये भी सोचते होंगे कि स्टमक में भी मेटाबॉलिज्म हो सकता है, इंटेस्टाइन में भी हो सकता है और किडनी में भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं उनको रेक्टिफाई करना चाहूँगा कि स्टमक में नहीं होता, इंटेस्टाइन में भी नहीं होता और किडनी में भी नहीं होता. स्टमक में जो भी ड्रग्स और मेडिसिन आप लेते हो वो लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है. देन इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है, और किडनी में क्यों नहीं हो सकता मेटाबॉलिज्म, क्योंकि किडनी में ड्रग का रीएब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है, थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्टर्स वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे ड्रग का रीएब्जॉर्प्शन होता है. ओके, आंसर फॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज लीवर. सो this is the last question, okay, from the chapter 3, that is absorption, distribution, metabolism and the excretion. Thank you for watching. If you had any query, then you can contact me on my mail or on my mobile number. Thank you very much. If you like my video, do like and subscribe, okay, and share to your friends. Thank you very much.